Hello dear student, welcome to the Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science, Akola, virtually. I belongs to the Department of Chemistry. Myself, Kanchan Vishramji Kumbhalkar, Assistant Professor. Here is your syllabus of BSc first year, semester 1. There are 6 units, out of which I taught you a thermodynamics. This is the overall syllabus included in a thermodynamics unit. So let's start the lecture number 4 of unit 5, that is thermodynamics. In this lecture we are dealing with expression showing a relationship between the pressure, volume and temperature, out of which the first, that is relation between pressure and volume, has been discussed in this lecture. Now we know that आपको पता है कि 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनामिक्स में. फर्स्ट है प्रेशर, सेकेंड वॉल्यूम एंड थर्ड इज द टेम्परेचर. सो उनके बीच में क्या रिलेशन है, कौन सा इक्वेशन वहाँ पे बैठेगा, दैट इक्वेशन हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन अ 3 फॉर्मेट. पहला फॉर्मेट द रिलेशन बिटवीन प्रेशर और वॉल्यूम का. प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, एक. सेकेंड, द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. एंड थर्ड, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर. इस लेक्चर में आई स्टार्ट विद द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. सो लेट्स चेक आउट द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. नाउ for adiabatic reversible expansion of an ideal gas we have a equation. This is the equation. ये equation किस लिए है? This equation is given for adiabatic reversible expansion. पिछले लेक्चर में हमने देखा था what is meant by adiabatic reversible expansion. Adiabatic process means what? The heat cannot be ejected to the atmosphere or cannot be accepted to the system. सिस्टम और सराउंडिंग का हीट लेना या देना अलाउड नहीं है, therefore heat exchange does not takes place. That type of process is known as the adiabatic process. In that case Q is equal to 0. Heat cannot absorb, cannot evolve. That is known as the adiabatic process. Reversible process means what? Reversible process क्या होती है? Suppose reaction आगे बढ़ रही है. The starting material, the reactant started and it get converted into the product. वो product की तरफ जा रहा है. But at any level, any stage of a reaction, the reaction become reversible means वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाएगा. सो नाउ द रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, बट आफ्टर रिवर्सिबल द प्रोडक्ट गेट कन्वर्टेड इनटू द रिएक्टेंट. सो दिस इज नोन एज द रिवर्सिबल. At any stage the reactant can be get converted into product and product can reversibly get converted into the reactant. That type of reaction is considered as the reversible reaction. And the third word is the expansion. Expansion मतलब क्या होता है? The expansion means when there is a increase in volume after the completion of reaction. Initially suppose V1 is the volume. Suppose 10 unit is the volume of initial stage of system. After completion of reaction means at a final stage, जब आप फाइनल स्टेज के बारे में बात कर रहे हो, एट दैट स्टेज द V2 इज द वॉल्यूम, मीन्स इट मस्ट बी ग्रेटर दैन 10, क्योंकि 10 पहले कंसिडर किया आपने कि 10 वॉल्यूम लिया था. But after completion of process
it becomes suppose 20 means the volume बढ़ गया. अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है मीन्स द प्रोसीजर इज नोन एज द एक्सपांशन. सो दिस इज दी ऑल अबाउट एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस. क्या दिया हुआ है? दैट इज डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी विच इज इक्वल टू पी डी वी विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस एन आर टी डी एल एन V. This is the differentiation, this is the integration of V, log to the base E V, ln E V. So for adiabatic reversible expansion process of a ideal gas, the du, that is change in internal energy, is written in a 3 format. पहला कौन सा है? CVDT, second PdV, third nRT dlnV. So अगर this one equal to this one, so this one equal to this one and this is also equal to this one. So आप ये पूरे इक्वेशन पर से ये लिख सकते हो कि this term is equal to this term. Okay, so we write the CVDT is equal to minus nRT dlnV. सो दो टर्म्स ले लिए हमने, ये एक टर्म लिया और ए एक टर्म लिया. ये इक्वेशन में क्या बता रहे हैं? ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू डी. सो बी इज इक्वल टू डी हो सकता है. सो वी राइट अ सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस एन आर टी डी एल एन वी. दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. बट फॉर n moles of ideal gas, the ideal gas equation is PV is equal to nRT. This is the ideal gas equation for n moles of ideal gas. अगर आप n numbers of moles of ideal gas ले रहे हो और उसका अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो this is the equation. What is the equation? PV is equal to nRT, where P is the pressure, V is volume, and number of moles are gas constant, and T is the absolute temperature. Now differentiating this above equation, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करने के बाद में हमें मिलेगा पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी. सो हमें चाहिए डी टी टर्म्स. सो पुट ऑल द अदर टर्म्स फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड. सो यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे वो डिवीजन पे चला जाएगा. तो द इक्वेशन बिकम्स डी टी, ये एन आर नीचे चला गया, सो डी टी इज इक्वल टू पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन एन आर. नाउ इसे स्प्लिट अप करो. स्प्लिट करने के बाद में क्या मिलेगा? पी डी वी अपॉन एन आर प्लस वी डी पी अपॉन एन आर. सो द डी टी इज इक्वल टू पी एन आर इंटू डी वी. डी वी को बाहर निकाल लिया विच इज़ अ डिफरेंशियल टर्म. सो पी अपॉन एन आर इंटू डी वी प्लस वी एन आर इंटू डी पी. नाउ वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. सो अगर इस इक्वेशन से P अगर चाहिए तो हमें V को इस साइड नीचे लेके जाना पड़ेगा. सो वी गेट ए फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P एज वेल एज V इन अ NRT फॉर्म. तो PV का जो ये फॉर्मेट है वो P सेपरेट एंड V सेपरेट में कैसे लिखेंगे? सो P इज इक्वल टू NRT अपॉन V. सिमिलरली फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर P को नीचे ले जाए तो V की वैल्यू क्या मिलेगी? V इज इक्वल टू NRT अपॉन P. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसमें P भी है और V भी है, तो पुट द P एंड V वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन. सो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन कहाँ से आया? ये इक्वेशन आया फ्रॉम दिस इक्वेशन. P अगर चाहिए तो V को मुझे NRT
से डिवाइड करना पड़ेगा, एनआरटी के डिवीजन में लेके जाना पड़ेगा. सो वी गेट अ P इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन V. सिमिलरली अगर मुझे V चाहिए तो V राइट अ V इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन P. So this is the nRT upon P, that is equal to V, and P is equal to nRT upon V. So put the P value and V value in this equation. So we get the dt is equal to nRT upon nr dV upon V plus nRT nr into dp upon p. nr कॉमन है सो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी nr कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा. सो द इक्वेशन रिमेन dt इज इक्वल टू t इंटू डी ln v, बिकॉज हियर इज द dv अपॉन v, 1 अपॉन v dv है, तो दैट इज नथिंग बट अ d ln v प्लस t इंटू डी ln p, बिकॉज nr कैंसिल हो जाएगा, t इज रिमेन यहाँ पे और यहाँ पे है dp अपॉन p, तो इट कैन बी रिटन एज द d ln p. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dt. नाउ dt की वैल्यू, अब जो फर्स्ट इक्वेशन था, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, that is Cv dt is equal to minus nRT d ln v. यहाँ पे जो dt वैल्यू है वो dt वैल्यू हमें मिल गई अभी. Now put that dt value in this equation. So putting the value of dt in first equation, that is Cv dt is equal to minus nRT d ln v. तो यहाँ पे dt था तो dt की वैल्यू यहाँ पे पुट की. सो dt इज नथिंग बट दिस वन, एंड ये पुट किया यहाँ पे. सो वी गेट अ न्यू इक्वेशन, दैट इज Cv इन अ ब्रैकेट d ln v प्लस t d ln p इज इक्वल टू माइनस nRT d ln v. नाउ सिंप्लीफाइंग दिस ब्रैकेट, इसे सिंप्लीफाई करेंगे. ये मल्टीप्लिकेशन में है Cv, तो ये दोनों को भी मल्टीप्लाई होगा. सो वी गेट CVT d ln v प्लस CVT d ln p विच इज इक्वल टू माइनस nRT d ln v. ये एज इट इज रिमेन. सो Cv ने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया बिकॉज इट इज अंडर ब्रैकेट. नाउ we get this equation, that is CVT d ln v plus CVT d ln p is equal to minus nRT d ln v. Now जो v टर्म्स है वो एक जगह लेके जाओ. यहाँ पे v की टर्म है तो पुट दिस टू द अनदर साइड. सो यहाँ पे एडिशन है, a प्लस b इज इक्वल टू c. तो अगर मुझे ये a टर्म यहाँ पे लेके जानी पड़ेगी तो ये माइनस हो जाएगी यहाँ पे. सो c, तो क्या होगा इक्वेशन? द CVT d ln p रिमेन एज इट इज, विच इज इक्वल टू माइनस nRT d ln v माइनस CVT d ln v. दिस इज द इक्वेशन बिकम. नाउ टेकिंग द माइनस साइड, इसका जो माइनस साइड है वो माइनस साइन बाहर निकालो तो वी गेट nRT d ln प्लस CVT d ln v. सो वी गेट इक्वेशन द CVT d ln p, द टर्म होल एज इट इज, वो वैसे की वैसे रख दिया, विच इज इक्वल टू d माइनस ऑफ माइनस nRT d ln plus CVT d ln in bracket. But we know that Cp, this is the equation, minus, so यहाँ पे d ln v कॉमन निकलेगा
तो आफ्टर टेकिंग कॉमन डी एल एन वी एंड माइनस साइन बाहर निकाला तो वी गेट इक्वेशन माइनस ऑफ सी इन ब्रैकेट सी वी प्लस एन आर ब्रैकेट कंप्लीट इंटू टी डी एल एन वी। क्या किया, यहाँ से टी डी एल एन वी कॉमन निकलता है, ये यहाँ पे भी डी एल एन वी है, यहाँ पे भी डी एल एन वी है, तो टी डी एल एन वी बाहर निकाला तो रिमेन माइनस एन आर माइनस सी वी। देन माइनस साइन भी बाहर निकाला तो माइनस साइन बाहर निकालते वक्त सब प्लस हो जाएंगे, तो द इक्वेशन बिकम एन आर प्लस सी वी या फिर सी वी प्लस एन आर, बोथ साइन कैन बी दोनों लिख सकते हो। सो द इक्वेशन बिकम माइनस इन ब्रैकेट सी वी प्लस एन आर कम ब्रैकेट कंप्लीट टी डी एल एन वी, बट सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एन आर। तो अगर सी पी को उस तरफ लेके जाए, सॉरी सी वी को अगर उस तरफ लेके जाए तो वी गेट सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस एन आर। अगर दिस सी वी यहाँ इस तरफ चला जाए तो वो माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो द सी पी बिकम्स सी वी प्लस एन आर। हियर इज द सी वी प्लस एन आर, देयरफॉर दिस सी वी प्लस एन आर कैन बी पुट, सी वी प्लस एन आर को आप उस जगह सी पी लिख सकते हो। सो द इक्वेशन बिकम by putting the value Cp in place of Cv plus Nr, क्या होगा, we get Cv dlnp is equal to minus Cp dlnv. Why? Because Cp minus Cv is equal to Nr, तो Cv plus Nr is become Cp. So putting the Cv plus Nr is equal to Cp, we get a new modified equation, that is Cv dlnp is equal to minus Cp dlnv. Now take this Cv to the another side, वो multiplication में है तो यहाँ पे division में चला जाएगा, so the equation become dlnp is equal to minus Cp upon Cv into dlnv. But देर इज अ इक्वेशन, बट ये दिया हुआ है कि सी पी अपॉन सी वी इज इंडिकेटेड एज अ गैमा, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सी पी अपॉन सी वी वी नाउ राइटिंग अ गैमा, सो द इक्वेशन क्या हो जाएगा, हेंस द इक्वेशन बिकम डी एल एन पी विच इज रिमेन एज इट इज इक्वल्स टू माइनस गैमा, बिकॉज हियर इज द माइनस साइन, सी पी अपॉन सी वी मतलब गैमा हो जाता है, तो दिस होल टर्म इज पुटिंग एज अ गैमा, सो गैमा लिख लिया तो इट इज बिकम माइनस गैमा डी एल एन वी एज इट इज। नाउ दिस इज द इक्वेशन इन द टर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, बट इट इज नॉट सॉल्व्ड, तो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन विद इन अ सुटेबल लिमिट्स, लिमिट्स क्या रहेगा, सपोज प्रेशर P1 इनिशियल, तो फाइनल प्रेशर क्या रहेगा P2। अगर V1 is the initial volume, then final volume is considered as the V2. So integrating this equation within a suitable limit. So integrating the above equation. So equation क्या integrate किया, integrating equation in a limit of P1 to P2 for pressure, और वॉल्यूम के लिए क्या होगा V1 to V2। गैमा कांस्टेंट है उसीलिए उसे इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, सो दैट हैज बीन, उसे बाहर निकाल दिया, ठीक है। नाउ आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी गेट ln of P of limit P1 to P2 equals to gamma minus gamma ln of V V1 to V2 limit. So it can be
सिंप्लीफाइड एज, उसका सोल्यूशन मिलेगा ln ऑफ अपर लिमिट डिवाइडेड बाय लोअर लिमिट, मीन्स ln ऑफ P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू माइनस गैमा ln ऑफ हायर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट, दैट इज V2 अपॉन V1. सो दिस माइनस साइन, ये माइनस साइन को नलीफाई करने के लिए, ये निकालने के लिए अगर हम माइनस V2 अपॉन V1 बोल सकते हो, अगर इसे नलीफाई करना है तो वी कैन राइट अ V1 अपॉन V2. सो ये माइनस साइन चला जाएगा. सो दिस साइड रिमेन एज इट इज, वो वैसे की वैसे रहेगी. दैट इज ln P2 अपॉन P1 विच इज इक्वल टू गैमा ln V1 अपॉन V2 माइनस V2 अपॉन V1 है, तो माइनस साइन निकालने के लिए इसे रिवर्स कर दिया, तो V2 अपॉन V1 का क्या हुआ, V1 अपॉन V2. सो इन दिस केस this is your equation in a simplified. Now this is in a ln means what? Ln means it is nothing but a log to the base e. जो रूल्स log to the base 10 के लिए रहते हैं वही log to the base e के लिए रहते हैं. So we know that a into log of something, तो वो उसके पावर पे चला जाता है. सिमिलरली ये जो गैमा है वो मल्टीप्लाई टू द लॉग टू द बेस ई ऑफ दिस टर्म है, तो ये जो गैमा है वो उसके अपर पावर पे चला जाएगा, वो पावर 2 हो जाएगा उससे. सो हेंस द इक्वेशन इज बिकम नाउ द ln ऑफ P2 अपॉन P1 जो रिमेन हो जाएगा एज इट इज, नो चेंज, बट द गैमा नाउ वो पावर पे चला जाएगा बिकॉज ये मल्टीप्लाई टू द लैन है दैट इज लॉग टू द बेस ई है. सो हेंस ln ऑफ P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू ln ऑफ V1 अपॉन V2 टू द पावर गैमा, पावर ऑफ गैमा. सो ये मल्टीप्लीकेशन में था टू द ln, हेंस वो पावर पे चला गया. Now we know that log of a is equal to log of b, then a is equal to b. So similarly ln of this is equal to ln of this. So hence this is equal to this is. So P2 upon P1 is equal to V1 upon V2 to the power gamma. So ये gamma को simplify करो. So we get P2 upon P1 remain as it is, which is equal to V1 to the power gamma upon V2 to the power gamma. Now वन टर्म वाले एक जगह ले लो, मीन्स इनिशियल स्टेजेस दैट इज P1 V1, और फाइनल स्टेजेस वाले एक साइड ले लो दैट इज V2 P2. सो दिस P1 डिवीजन पे है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, एंड ये डिवीजन पे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पे चला जाएगा. तो द इक्वेशन बिकम P2 मल्टीप्लाई बाय V2 टू द पावर गैमा इक्वल्स टू V1 टू द पावर गैमा इंटू P1. सो द इक्वेशन बिकम P2 V2 टू द पावर गैमा इक्वल्स टू P1 V1 to the power gamma, means it is constant. This is the equation which indicate the relation between the pressure and volume. This is the equation which indicate the relation between pressure and volume. So this is all about the expression of pressure and volume relation. In the next lecture, we will start with the relationship between temperature and volume. इस लेक्चर में हमने प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देखा. अगले लेक्चर में हम देखेंगे टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या इक्वेशन बैठता है. तब तक
Take care, be safe, stay safe. Thank you.